ईश्वर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु वेदेषु शब्द के पुरुषं नशु पुरुषं नृषु रसोमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु वेदेषु शब्द के पुरुषं नशु Yes, Shruti Mataji, can you please recite the translation? Hare Krishna, O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable of Om in the Vedic mantras, and the sound in ether and ability in man. Yes. So here Krishna is describing. Sometimes people wonder that how should we remember Krishna? It is said that we have to follow two principles in our bhakti. What are those two principles? Whatever we do in bhakti, these are subservient to these two principles. What are these two principles? हम भक्ति में जो भी करते हैं वो इन दो प्रिंसिपल्स के अंडर में करते हैं. वो दो प्रिंसिपल क्या होते हैं? Okay. So the principles are: first, always remember Krishna; second, never forget Krishna. These are the two principles, right? Okay. Thank you, Gayatri Mataji, Sana Mataji, Lalit. Yes. So always remember Krishna and never forget Krishna. ये दो प्रिंसिपल उनको काम करना है. अभी बोलेंगे प्रभु जी लेकिन हम कोशिश तो करते हैं, कृष्णा उतने याद नहीं आते हैं. और कई लोग बोलते हैं प्रभु जी कृष्णा तो 24 घंटे हमारे हृदय में चलते रहते हैं. वो कैसे चलते पता नहीं, पर बोलते हैं कई लोग. And some people they say that प्रभु जी नहीं आते कृष्णा याद 24 घंटे, कैसे करें हम कृष्णा को याद? So here Krishna is telling us the ways by which we can remember Krishna. Like once it was asked to Srila Prabhupada, Prabhupada, how can we remember Krishna all the time? Prabhupada says, so easy. So easy. Suppose if you love your kid and if you're going outside and if you see some small shoes, then you will instantly remember your kid. If you see some toy, you will instantly remember your kid, right? So similarly, if you love Krishna, Krishna is saying he's the taste of water. Whenever we drink water, if we can just recall that the taste that I'm getting, pure water I'm saying, not flavored water. So pure water, whenever we drink, we can remember, oh, this taste is Krishna. So whenever we drink water, we can remember Krishna. Then Krishna is saying, I am the light of the sun and the moon. Right? Like we discussed it last time, you remember? That this material world is a very dark place. Huh? Yes, Aditi Mataji, Sana, thank you. Gayatri Mataji, thank you. So this world is a very dark place, very dark. It's absolutely dark. And to give it light, the sun is there, moon is there, artificial lights are there. If you take out sun, if you take out moon, if you take out all the artificial lights that are illuminating this world is so dark. It's pitch dark. Krishna's abode is not like that. The spiritual world, Krishna's Golok Dham or Vaikunth Dham, they are not like that. They're self-illuminating. But here it is, everything is dark. And Krishna, he comes in the form of sun and moon to give us light. So he's saying, I am the light of the sun and the moon. So that this world is illuminated, right? So Krishna is the taste of water, he is the light of the sun and the moon. Then he's saying among all the syllables, he's the pranava Om. Om is said to be the foremost of all the words, right? Om. So it's pranava Om. Any mantra, anyway, we won't go into details of the mantras and all that. But yes, Krishna says that he is Om. And then Krishna is saying he is the ability in man. Whatever abilities we have, that is because of Krishna. Okay. Suppose if you are very intelligent, intelligence is given by Krishna. Krishna says, declares in Bhagavad Gita that I am the source of all remembrance and forgetfulness. He declares in Bhagavad Gita, right? Then someone is very strong, that strength comes from Krishna. Someone is very beautiful, that beauty comes from Krishna. Thank you, Nishka Mataji. So everything, all the abilities that we get, or anyone for that matter has, that is coming from Krishna. So henceforth, if we see anyone very beautiful, we have to understand, oh, this beauty is coming from Krishna. Just imagine, Krishna का अगर creation इतना beautiful है, तो creator कितना beautiful होगा, right? If we see someone very handsome, very smart, very beautiful, we have to just think. We should not get
enamored by that beauty and that handsome or smartness or whatever, all those qualities. We should just think कि अगर कृष्णा ने इनको इतना ब्यूटीफुल बनाया तो कृष्णा खुद क्या ब्यूटीफुल होंगे. कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, कंदर्प कोटि कमनीय, सो ब्यूटीफुल. करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाए तो भी उनकी ब्यूटी की बराबरी नहीं कर सकते. राइट? इट इज सेड दैट वंस कामदेव he thought of disturbing Krishna. He's very powerful, no doubt about that. In this world, Kamdev is so powerful that no one can say that I'm completely free from lust, or I'm completely free from sex desire, or I'm completely free from enjoying tendency. No one can say in this world, no one, except pure devotees of Lord. Obviously, the one who have developed love for Krishna, they can say that. But besides them, no one. Kamdev ने सबको अपने मुट्ठी में रखा हुआ है. ऐसे उंगलियों पे नाचते हैं सब. The foremost principle in this world is attraction to opposite sex. People can give up meat eating, easy. People can give up intoxication, easy. People can give up gambling, so easy. But to come out of attraction to opposite sex, it's difficult. Obviously, at gross physical sense, it is easier. But to come out even at mental level, it's really difficult. Really difficult at all the times. It's difficult. But yes, those who have developed love for Krishna, only they can do so by the mercy of Krishna. So you have to understand this Kamdev, becoming so proud and so arrogant once he decided to visit Krishna, and he thought that today I will control Krishna. But as soon as he saw Krishna, just seeing the beauty of Krishna, he fell down. He fell down unconscious. That is the beauty of Krishna. And the beauty is that Krishna's beauty goes on increasing. अगर हम किसी की ब्यूटी देखते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में तो वो कम होती जाती है. कोई पीक ऑफ यूथ पे होगा तो बहुत ब्यूटीफुल होगा या होगी, पर जैसे जैसे यूथ कम होगा ब्यूटी कम होती जाएगी. Krishna is not like that. Krishna's beauty goes on increasing, ever increasing. It is said that there is a transcendental competition between Krishna and gopis. When gopis they see Krishna, Krishna becomes even more beautiful. By seeing the happiness that is coming on the face of gopis by seeing him, Krishna becomes even more beautiful. And then seeing more beauty of Krishna, gopis become even more beautiful. They become more happier. And then gopis become more beautiful. And then seeing gopis like that, Krishna becomes even more beautiful. And the beauty goes on increasing. So it's a transcendental competition between Krishna and gopis. The beauty goes on increasing. Everything is increasing in the spiritual world, in a good sense. But in material world, everything is diminishing. That is the law of material world, diminishing law. Right? Any happiness has a diminishing law. For example, if I take first gulab jamun, मजा आ गया. Second, okay. Third, okay. Fourth, fifth. उसके बाद तो no, प्रभु जी बस हो गया. Thank you. आपने बहुत खरीदारी कर ली. Thank you. So there is a law of diminishing return, right? If I am declared that I have been given as the first prize, and I will think, oh wow, I got first prize. Very good, very good. कोई घंटे बाद आके बोले आपको फर्स्ट प्राइज मिला है. Okay, thank you. कोई 10 दिन बाद बोले आपको फर्स्ट प्राइज मिला. Thank you. कोई बोलेगा 1 साल बाद आपको फर्स्ट प्राइज. अरे बस हो गया भाई. मिल गया प्राइज हो गया. Thank you. Right? So there is law of diminishing return. Yeah, thank you निशा माता जी कहते माता. लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में there is no past because the time is it is said that time is auspicious by its absence. So there is no past in the spiritual world. Everything is present. There is no future. There is no past. Everything is present. ये concept हमारे दिमाग के बाहर की बात है. We can't discuss it right now because we are so bound by the laws of time in this world. It's very difficult for us to understand what do you mean by that. अगर मैंने कुछ खा लिया, पास्ट हो गया ना. ये क्या होता है कि पास्ट नहीं होता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. नहीं होता. कैसे नहीं होता? वो टॉपिक हमारे सेशन के बहुत बाहर की बात है. But there is no past. There is everything present there. Everything is ever increasing. All the happiness is ever increasing. The beauty is ever increasing. But this world is not like that. पर इस वर्ल्ड में जो कुछ भी एबिलिटी हम देखते हैं, we have to understand that ability comes from Krishna. Any ability. So we should not get enamored by the abilities that we see in the people in this world. If we see someone so beautiful, we should not get enamored. We should understand, this beauty is nothing in front of the Creator, Krishna. Threefold bending form of Krishna is so beautiful. Shyam Sundar Krishna is so beautiful. It is so beautiful that Gopis के सामने जब कृष्णा विष्णु रूप में आए, 400 form of Krishna, that is Vishnu रूप. So gopis, they bow down to Vishnu, but then they say to Vishnu that where is Krishna? Krishna's beauty is unparalleled. No one can match. In fact, there are 60 qualities
it is said that there are 60 top qualities in Vishnu, full qualities. And there are 64 qualities in Krishna. So Krishna has got another 4 more qualities in him. So anyway, we are getting away from our topic. But the point is that all the ability that we see in this world, they come from Krishna. So if we have to remember Krishna, it is so easy to remember Krishna. If we see some, nowadays monsoon season is going on. So if we see outside some black clouds, monsoon clouds, then we should say, oh my God, this is the color of Krishna. That's what Bilo Magar Thakur in his Chaurashtakam, he chastises Krishna or he blames Krishna that you have taken or you have stolen the color of newly formed monsoon cloud. You have stolen Krishna. You have stolen that color. Out of love, he is saying like that. But that is Krishna's color. Once Prabhupada, he went to Africa and he said to Africa, long back, 1970s, Prabhupada said to African people, you know what is the color of Krishna? And everyone, just they were just hearing first time who is Krishna. They said Krishna is God. And you know what is the color of Krishna? He's black. And everyone, they all started clapping very loudly. Wow, Krishna is black like us. Okay. तो सब लोग बहुत खुश हो गए. प्लीज वाओ, ये कृष्णा भी ब्लैक है हमारी तरफ, कृष्णा भी हमारी तरह ब्लैक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. सब लोग खुश हो गए. Then Prabhupada said, no, but it's not black like you. So yeah, Krishna, this Sham Varna is called as Sham, but it's not black as we understand. Because otherwise हमारे दिमाग में आता है कि कृष्णा black, how can he be so beautiful? But his black color is not like, ये black ऐसा नहीं है जैसे हम देखते हैं दुनिया में, right? It's very special. कृष्णा बहुत ब्यूटीफुल है. और हमको जिस मेटेरियल वर्ल्ड में किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है या बहुत पावरफुल है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वाओ इट इज सो ग्रेट. हमको सोचना चाहिए कि ये इतना है, वो क्रिएटर जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसके पास हम जाना चाहते हैं, जैसे हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वो कितने ब्यूटीफुल होंगे, वो कितने पावरफुल होंगे. कृष्णा इज ऑल पावरफुल, कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल, कृष्णा इज ऑल नॉलेजेबल. एवरीथिंग इज अबाउट कृष्णा. हर कुछ कृष्णा के बारे में हम बात करें तो सब कुछ ऑल है, ग्रेटेस्ट नहीं, ऑल है, सब कुछ है कृष्णा में. पराशर मुनि ने जो डेफिनेशन दिया है भगवान किसको बोलते हैं, उसमें जो 6 क्वालिटीज हैं कृष्णा में, वो 6 के 6 पूरी हैं, राइट. All strength, all knowledge, all renunciation, all fame, and all that. So Krishna is all that. So if we have to remember Krishna, just see whatever beautiful, whatever great जो हमको इस दुनिया में दिखता है, हमको सोचना चाहिए कृष्णा से आया है. And we can remember Krishna. हम पानी पिए तो हमको सोचना चाहिए ये जूस में टेस्ट आ रहा है, कृष्णा से आ रहा है. We can remember Krishna. हम मानसून क्लाउड को देखें, we can remember Krishna. For that matter, अगर हम कोई फूल देखें, जैसे इसका फूल देखा हमने, लोटस फ्लावर, राइट, स्पेसिफिकली लोटस फ्लावर, तो कृष्णा को लोटस फ्लावर से कंपेयर किया गया है. कृष्णा, योर फेस इज लाइक लोटस, योर लोटस लाइक फेस, योर आईज आर लाइक लोटस. कृष्णा आपके वी से लोटस फीट ऑफ कृष्णा, कृष्णा आपके पैर लोटस की तरह, आपके हाथ लोटस की तरह. इनफैक्ट एक आचार्य ने तो ये तक बोलते हैं कि कृष्णा हम आपकी ब्यूटी की क्या कंपेयर करें, इस दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम कंपेयर कर सके आपकी ब्यूटी का. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ है नहीं कंपेयर करने का, पर है एक लोटस फ्लावर जिसको ब्यूटीफुल बोला जाता है, तो हम उससे कंपेयर करते हैं. बट अदरवाइज इट्स एन इंसल्ट टू यू. So even if we see some lotus flower, we should think, oh, it is Krishna. It's Krishna's light. So it's not that difficult. इतना difficult नहीं है हमको कृष्णा को समझना है, कृष्णा को याद करना. We can easily do that, है ना, हम आराम से कर सकते हैं ये. We should just correlate. हमको सिर्फ correlate करना है भगवान के साथ में, उसका संबंध स्थापित करना है, और हम कृष्णा को हमेशा याद कर सकते हैं. तो हमारा प्रिंसिपल ही है भक्ति का, है ना. We should always remember कृष्णा. हमेशा कृष्णा को याद रखना, हमें कभी भूलना नहीं है. और कृष्णा को ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं. अगर हर बार पानी पीने से पहले हम सोचे, ओ इसमें जो टेस्ट मुझे आ रहा है वो कृष्णा से आ रहा है. हम सन को जब देखते हैं हम सोचे, ओ ये जो सनलाइट है ये कृष्णा है, मूनलाइट कृष्णा है, राइट. साउंड, एवरी साउंड कृष्णा है, एवरी साउंड इज कृष्णा, राइट. बट दैट इज वन वे. द बेस्ट वे इज हाउ टू रिमेंबर कृष्णा. What is the best way to connect with Krishna? All the time? Yes? जपा करके. हाँ, थैंक यू माता जी. जपा करके या फिर अगर जैसे आप चल रहे हैं, है ना, आपके हाथ में पेड़ वेड़ नहीं है, वो भी आप मन में अगर भगवान का नाम लेते रहते हैं, you're connected with Krishna. You will develop all the good qualities. Thank you अनुसया माता जी, विवेक, ओनिशा माता जी, अना माता जी. So
भगवान का नाम जप करिए आप, भगवान से कनेक्टेड एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। हमेशा कृष्ण को याद रखेंगे हम, न केवल याद रखेंगे बल्कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। We'll start loving Krishna, and that is the success of our human form of life. If we develop love for Krishna. अब बोले प्रभु जी आप इतना बोलते रहे तो लव 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 क्या हो जाएगा, लव डेवलप हो गया तो? We just don't know. हमको कुछ आइडिया ही नहीं एक्चुअली कि अगर हमको कृष्ण के लिए लव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? We'll be completely satisfied. Completely satisfied. ये जो मन है ना हमारा जो चंचल है, even अर्जुना से भगवत गीता चंचलम ही मना कृष्णा, जो मन हमारा चंचल है कभी इस भोग की तरह कभी उस भोग की तरह, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है मुझे वो करना है, पूरा शांत, कुछ नहीं चाहिए, so satisfied. That is the success. When you become completely satisfied, when you become completely happy, पूरा हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस ये नहीं कि आपको सोचे कि एक स्टैटिक हैप्पीनेस है, स्टैटिक वो ब्रह्मानंद है ना? हम लोग बोल रहे हैं वो कृष्ण प्रेमानंद की बात कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम, उसका आनंद वो बढ़ता जाता है। मैंने आपको बताया इट्स आनंदम बुद्धि वर्धनम, वर्धनम मींस इंक्रीजेस। वो जो प्रेम है वो उसको क्या डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। यू ऑलवेज फील सो हैप्पी 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 एंड हैप्पीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। वो किसी भी दुनिया में से कोई भी चीज में या किसी भी इंसान में वो शक्ति नहीं है जो आपको इस तरह की हैप्पीनेस दे सके। जो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते ना कि हीरो हीरोइन मिले एंड दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, ऐसा कुछ नहीं होता। नो वन कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? एंड कलयुग में तो स्पेसिफिकली क्वारल, यस थैंक यू गायत्री माता जी, क्वारल एंड हिपोक्रेसी, ये दो चीजें कलयुग की निशानी, खास निशानी। क्वारल झगड़ना एंड हिपोक्रेसी, जो है नहीं वो दिखाना, राइट? तो ये हो नहीं सकता कलयुग में कि कोई भी दो इंसान साथ में रहे और लड़े ही ना, नहीं हो सकता, राइट? You can't be ever happy with any person in this world. No, please don't mind if someone has a very great romantic idea about love life or about being with spouse or like that. Yes, obviously we can love people, we must love people actually because everyone is part and parcel of Krishna. But जो प्रेम हम कृष्णा से मिल सकता है और जो प्रेम हम कृष्णा को कर सकते हैं वो किसी से नहीं हो सकता। वो उसके बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये हमारा धर्म है ना, ये हमारा स्वरूप है। और दूसरी बात कृष्णा शाश्वत है, कृष्णा का फॉर्म शाश्वत है, बाकी चीजें जो भी है वो सब टेम्पररी है। हर पर्सन टेम्पररी, हर पर्सन का मैनिफेस्टेशन टेम्पररी है, हर चीज टेम्पररी है। कोई भी चीज आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए आपके या कोई भी पर्सन आपके साथ अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं दे सकता, एंड वो आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस भी नहीं दे सकता, बट कृष्णा कैन गिव। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। ऐसे बोलते हैं कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर कृष्णा के साथ 10 फ्रेंड है, वो खेल रहे हैं, है ना, अगर वो 10 फ्रेंड बोलते हैं कि मैं कृष्णा को पहले पकड़ूंगा, मैं कृष्णा को पहले पकड़ूंगा, तो 10 के 10 रेस लगाते हैं, है ना, और 10 के 10 रेस लगा के कृष्णा के पास जाते हैं, तो कौन पहले पकड़ेगा? How will Krishna make everyone happy? कृष्ण पहले पकड़ेंगे, कृष्णा सबको पहले पकड़ेंगे, ओके? So what will happen is that everyone will catch Krishna first, and everyone will think that I have caught Krishna first, without knowing that others have also caught Krishna first. ये कंसेप्ट हमारे समझ के बना। ऐसे बोलते हैं, कई बोलते हैं ना, वो एक सॉन्ग आया था, क्या था वो सॉन्ग? करते यहाँ सभी रासलीला है, मैं करूँ तो कैरेक्टर डीला, राइट? When I heard this song, I felt so angry. Okay, thank you for that. मुझे तो गुस्सा आया जब सॉन्ग सुना। मतलब इसका मतलब रासलीला करना कैरेक्टर डीला है, मतलब इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया सॉन्ग में। बॉलीवुड इज अनफॉर्चुनेटली वेरी एंटी वैदिक, एंटी सनातन। एनीवे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा जब गोपियों के साथ डांस करते हैं तो पहली बात तो कृष्णा गोपियों के प्लेजर के लिए डांस कर रहे हैं, खुद के प्लेजर के लिए नहीं। कृष्णा तो आत्मा राम है, सेटिस्फाइड। सेकेंडली, जब कृष्णा ने गोपियों के साथ डांस किया था, आपको पता है कैसे डांस किया था? कृष्णा तो अकेले थे, इतनी सारी गोपियां थी, सो मेनी गोपीज होते, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, तो कैसे डांस किया होगा कृष्णा ने, बताओ? He has expanded himself. Okay, Nisha Mataji, you have given a very good answer. Krishna had expanded himself. Expanded himself means he has expanded into so many forms as the number of gopis were there.
मतलब जितनी गोपियां थी उतने कृष्णा हो गए थे, ऐसे बोलना चाह रहे हैं आप निशा माता जी? Yes, Prabhuji. ओके निशा माता जी, यू आर राइट। ये एक एक्सप्लेनेशन है। किसी को पता है दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? ये भी राइट है। दूसरा क्या है? आचार्य ने जो क्या दिया है दूसरा एक्सप्लेनेशन, हाउ कृष्णा सेटिस्फाइड ऑल द गोपीज। ओके, सो नाउ सेकंड एक्सप्लेनेशन, पहले ही एक्चुअली बहुत ही बिविल्डरिंग है ना, बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतने सारे फॉर्म्स में कृष्णा एक्सपेंड होगा और सबके साथ डांस कर रहे हैं। और दूसरा और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। दूसरा आश्चर्यजनक ऐसे है, व्हाट कृष्णा डिड वाज, नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट। जैसे सारी गोपियां डांस कर रही हैं, राइट? तो पहली गोपी का जैसे हाथ ऊपर है, तो कृष्णा आए पहली गोपी के पास में, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और वो वाला एक्शन किया जो गोपी कर रही है। देन ही इमीडिएटली गोस टू अनदर गोपी, लेट अस से उसका हाथ साइड में है, तो कृष्णा आएंगे अपना हाथ ऐसे साइड में रखेंगे, उसके साथ वो एक्शन करेंगे। देन ही गोस टू थर्ड गोपी, जिसका कोई और डिफरेंट मूवमेंट होगा, कृष्णा उसके साथ वो मूवमेंट करेंगे। फिफ्थ गोपी हो सकता है फर्स्ट गोपी जैसा मूवमेंट हो, कृष्णा उसके साथ वो मूवमेंट करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली ही डिड विद एवरीवन without anyone realizing that Krishna ever left us. Can we imagine? Although super fast, and not only super fast, that is able to reciprocate with everyone, none of them realize that Krishna ever left us. So that is only Krishna can. I hope you understood what I was trying to tell. Yes, thank you Vivek Prabhu, Sana Mataji, Amita Mataji, Nisha Mataji. So this is how Krishna can reciprocate. है कोई दुनिया में ऐसा जो रेसिप्रोकेट हो सकता है? लोग बोलते कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो। तुम एक को छोड़ो, एक को सेटिस्फाई करके दिखा दो, दो की तो बात ही जाने दो, राइट? But Krishna can do that. He is unlimited. He is unlimited. So we should not try to compare ourselves with Krishna. We should just try to follow Krishna's instructions. We should not try to imitate Krishna. हमको कृष्णा की नकल नहीं करनी है, हमको कृष्णा के दिए गए निर्देशों का पालन करना है। कृष्णा ने जो भगवत गीता में हमें जो निर्देश दिए ना, उनका पालन करना है, नकल नहीं करनी, क्योंकि हम नकल करने के लिए हमारी हैसियत नहीं है। तो ये फालतू के गाने नहीं बनाने के और ऐसी बातें नहीं करनी है ना। तो हमको ये देखना है कि कृष्णा में अनलिमिटेड एबिलिटीज हैं, सो व्हाई शुड नॉट आई लव दैट पर्सन? एंड अनलिमिटेड एबिलिटीज क्या बोलने का, इन ऑल द गुड वेज इट इज देयर। So beautiful, he's so smart, he's so intelligent, he's so powerful, he's so magnanimous, he's so loving. कृष्णा से ज्यादा लव कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, किसी को भी, कोई भी नहीं कर सकता। He has got unlimited love. सोचो ना, इतने जन्मों से हम कृष्णा को भूले बैठे हैं, या फिर पता नहीं एथिस्ट भी होंगे, नास्तिक भी रहे होंगे बहुत जन्मों में, हमने कृष्णा को गालियां भी दी होंगी, वो भी कृष्णा एज अ परमात्मा हमारे हार्ट में is trying to guide us. Yes, Gayatri Mataji is still there within our heart. Thank you, Mataji. Is still trying to guide us. कोई बात नहीं। ये जो लेक्चर्स हम अटेंड कर रहे हैं ना, थैंक यू निशा माताजी, ये जो आप सुन रहे हैं अभी प्रवचन, ये कृष्णा ही साजन जी, ये जो आप जपा करते हैं, that is Krishna gives you that strength and the intelligence कि आप जपा कर सकें, आप प्रसाद ले सकें। राधा रानी अरेंज करती है वो प्रसाद, ये सब कृष्णा अरेंज कर रहे हैं ताकि हम उनके पास आ सकें। हाउ मच लव ही हैज, जबकि हमने उनको इतनी बार रिजेक्ट कर दिया, इतनी बार रिजेक्ट किया, अभी भी हम रिजेक्ट करते हैं। इनफैक्ट कृष्णा बार बार हमको अंदर से इंस्पिरेशन देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, नहीं अब मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है ना, हमारा मन तो बहुत बदमाश है एक्चुअली, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड बट कृष्णा इज सो लविंग, इज स्टिल वेटिंग फॉर अस ऑल द टाइम। कब से वेट कर रहे हैं हमारा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाओ मेरे साथ, लेट अस डांस, लेट अस प्ले, लेट अस बी हैप्पी टुगेदर। वहां पर कृष्णा अकेले नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्णा है। ओके, सो निशा माता जी asked one question, प्रभु जी, how can we remember Krishna even during office time? Okay, so let me take that question first. I appreciate when devotees ask question. जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब काफी अटेंटिव है। And obviously I like and I love, in fact, when you give emojis also, तो तब भी लगता है कि हाँ अटेंटिव है। Thank you गायत्री माता जी, आरती माता जी, निशा माता जी, thank you all of you. So हम कृष्णा को कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया, हम जितनी बार पानी पिए हम सोच सकते हैं कि ये कृष्णा का टेस्ट है, यू नो, दिस टेस्ट इज कृष्णा।
हम जब भी सनलाइट को देखें, सन को देखें, हमको सोचना चाहिए कृष्णा है। मूनलाइट को देखें, हमें सोचना है कृष्णा है। किसी भी ब्यूटीफुल पर्सन को आप देखो, सोचो कृष्णा ने इसको क्रिएट किया है, हाउ ब्यूटीफुल कृष्णा विल बी, कृष्णा कितने ब्यूटीफुल होंगे। किसी भी अगर बहुत स्ट्रेंथ पावरफुल पर्सन को आप देखो, द स्ट्रेंथ इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, रिमेंबर कृष्णा, राइट। किसी भी चीज को अगर आप देखते हो तो वो क्वालिटी कृष्णा से आई है। अगर फ्लावर्स अगर आप सूंघते हैं, उसमें जो खुशबू है, खुशबू कृष्णा से आई है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा हर कण कण में है, कण कण में है, भगवान बोलते हैं ना। सो कृष्णा इज एंटरिंग ईच एंड एवरी एटम, each and every atom. He's keeping the things together. Taste. Yes, taste of water, taste of anything which is good. अब नहीं तो कोई बोलेगा कि अल्कोहलिक, यू नो, इनफैक्ट प्रभुपाद का एक लेक्चर है, प्रभुपाद ने बोला इवन अल्कोहलिक इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि जो अल्कोहल का टेस्ट है ये कृष्णा से आया है, तो वो भी डिवोटी बन जाएगा। बट वी शुड नॉट डू दैट। यस, थैंक यू। तो हमको ये नहीं करना है। हाँ, we should test it ourselves to taste of water. बस प्रिंसिपल ये है कि कृष्णा को भूलो मत, कृष्णा को याद करो। और जितना आपको लव बढ़ेगा ना कृष्णा के लिए, उतना इजी रहेगा कृष्णा को याद रखना। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे हम हमारे किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को अगर हम बहुत प्रेम करते हैं ना, तो याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप दिमाग में आता है। जितना प्रेम करेंगे उतना दिमाग में छाया रहेगा। इज इट नॉट? एग्री? यस, थैंक यू अनुरुद्धा माता जी, रामेश्वर प्रभु। वैसे ही अगर हम कृष्णा को, जितना हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा ना, उतना बहुत इजी होता जाएगा कृष्णा को याद रखना, बहुत इजी होता जाएगा। और वो प्रेम बढ़ाने की सबसे पावरफुल है, भगवान का नाम जप करते रहिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हेलो नास्ते हुए नास्ते हुए नास्ते गति अन्यथा। होली नेम होली नेम होली नेम, दैट्स इट। कलयुग में केवल नाम आधार, नाम जप करिए, नाम जप करते रहेंगे, अपने आप हमको कृष्ण याद आएंगे, क्योंकि हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा। लेकिन नाम करेंगे, नाम जप के साथ हमको कुछ गलत काम नहीं करने हैं, तो नाम ज्यादा पोटेंसी दिखाएगा। ठीक है? ओके, सो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। यस तो प्रभु जी, आपने जितने भी एग्जांपल दिए, जैसे मतलब कृष्ण को रिमेम्बर करने के लिए कुछ टेस्ट ऑफ वाटर, जो प्योर वाटर है, या कोई इंसान है जो ब्यूटीफुल है या फिर हैंडसम है, बट उसके अपोजिट अगर हुआ तो उस केस में कैसे, मतलब इवन हम ऑफिस भी जाते हैं, कोई कभी ट्रैफिक में फंसते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे नेगेटिव केसेस या नेगेटिव सिनारियो में, उस केस में हम कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं कृष्णा को? ओके, सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज बेस्ट इन एवरीथिंग, है ना। जैसे आप भगवद गीता चैप्टर 10 पढ़ते हैं, ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, ये भगवद गीता का चैप्टर 10 है, टोटल 18 चैप्टर है, 18 अध्याय में से 10वां अध्याय है जिसमें कृष्णा अपना ओपुलेंस के बारे में बताते हैं, और सारा ओपुलेंस बता के कृष्णा एंड में बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, यू नो, दिस व्हाट आई हैव डिस्क्राइब्ड इज जस्ट अ फ्रैगमेंट। तो उसमें कृष्णा बोलते हैं इज बेस्ट इन एवरीथिंग, इज बेस्ट इन एवरीथिंग। तो हम कोई भी चीज देखते हैं तो अगर हमको बेस्ट दिख रहा है उसमें, तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हमको सोचना है कृष्णा से आया है। लेकिन आप जैसे उसको ऑपोजिट बता रहे हैं, तो ऑपोजिट बता रहे हैं, तो इन दैट वे वी कैन कनेक्ट इट इनडायरेक्टली। लेट अस से let us say if we see a person who is very crippled, very ugly, तो we should not, ideally क्या होता है, जैसे मैं आपको दो सिचुएशन बताता हूँ। जैसे हमारे साथ में अगर कुछ बुरा होता है, यू नो, कुछ भी बुरा होता है, चाहे हमारे शरीर के साथ हो या चाहे हमारे मन के साथ कुछ बुरा हो, तो हमको ये समझना चाहिए कि मेरे कर्म से मुझे आया है, ठीक है, मैंने कुछ गलत किया होगा। और कृष्णा का इनडायरेक्ट सिस्टम है जिसमें कर्म का सिस्टम जो है उससे मुझे ये पनिशमेंट मिला है, लेकिन मैं कृष्णा की भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए मुझे टोकन के रूप में मिला है। ये खुद के ऊपर है। लेकिन जब आप किसी और को देखते हैं तो भले ये बात सच है कि उसको भी जो पनिशमेंट मिला है कर्म से मिला है, और वो कृष्णा के सिस्टम के थ्रू मिला है, और कृष्णा का सिस्टम 100% एक्यूरेट है, राइट, 100%। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको कर्म से पनिशमेंट मिला है, बट वी कैन फील compassionate towards that living entity. We can think how
this person is suffering so much and how can I bring this person nearer to Krishna जिससे उसकी suffering कम हो. ललित प्रभु, are you there? Yes, Prabhuji. Yes. तो अगर हम किसी के साथ बुरा देखते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि he is suffering so much. पर वहां पे कर्म का प्रिंसिपल लाके ये नहीं सुनना चाहिए अच्छा ये पापी था इसलिए उसको सफरिंग मिल रही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. कर्म का प्रिंसिपल खुद के लिए लागू करना है, दूसरे के लिए हमको ये सोचना है कि he is suffering so much, how can I bring him nearer to Krishna जिससे इसकी suffering कम हो. So we can connect when we see other people suffering by thinking how we can bring him nearer to Krishna जिससे इसके जो उसको जो सजा मिल रही है वो कम हो जाए और उसमें जो हैप्पीनेस है वो बढ़ सके. Is it clear? Yes, Prabhuji. Yes. Yeah, but हमें सिर्फ थिंक करना है या मतलब कनेक्ट भी करवाना है. हाँ, जितना हो सकता है हमको करना है. सी हम कृष्णा नहीं हो सकते. कई लोग ऐसे बोलते ना प्रभु जी मेरा मन करता है कि मैं अपनी सारी दौलत लोगों पे लुटा दूं, गरीबों को बांट दूं. अरे प्रभु जी आप कृष्णा नहीं हो. कृष्णा की तरह एक्ट करने की कोशिश मत करो. वी आर नॉट अनलिमिटेड, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना. यू हैव अ फैमिली, यू हैव फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, है ना. एग्री ललित प्रभु? Yeah, so we should not try to act like Krishna. We can be an instrument in the hand of Krishna. हम भगवान के निमित्त मात्र बन सकते हैं, हम भगवान नहीं बन सकते. तो हमको हमारी लिमिट समझते हुए जिसको जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए. सोचना ही नहीं है, हेल्प भी करनी है, पर अपनी लिमिट समझते हुए, है ना. Thank you. Yes, thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Thank you so much. Any other questions, comments? आप लोगों को कुछ अच्छा लगा आज? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी. ओके, थैंक यू सो मच. कोई पर्टिकुलर पॉइंट आप बताएंगे जो आप लोगों को एक अच्छा लगा कि हर चीज में हमें कृष्णा देखना है. कुछ भी जैसे हम कुछ खा भी रहे, हमें कुछ काम भी करना है तो हमें एक अजूम करना है कि हम भगवान के लिए करें, हम अपने लिए नहीं कर रहे कुछ. अभी उसमें और सब में भगवान है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो आई डोंट थिंक वी विल मेकिंग एनी काइंड ऑफ फेलियर. Wonderful, wonderful, Kedana. Wonderful. Nishamati is saying Krishna is showing us that he is not far away, he has left, remind us of himself throughout creation. Very good. Yes, very much right, Nishamata ji. You know, creation में देख देख के हमको भगवान याद आने चाहिए. Creation को देख के हमको Creator की याद आनी चाहिए. कोई भी beautiful चीज अगर हम देखते हैं, because Krishna is best of everything. Okay. Anyone else? Any other comment? Okay. So we'll end the class here. Thank you so much for joining, and please try to chant as much as you can, but with a loving mind. Huh? Thank you so much, Nisha Mataji, Rameshwar Prabhu, Lalit Prabhu, Vrinda Mataji. Thank you, everyone of you. Thank you. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. प्रभु जी. Hare Krishna. Hare